चलें प्रभु के वचन की तरफ आते हैं हम। यशवा की किताब, यशवा दी किताब ਉਹਦਾ 23ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। अगर किसी ਨੂੰ याद होवे पिछली बारी 22nd चैप्टर पढ़ा ਸੀ, 22 मामू जी चैप्टर पढ़ा था। आज 22 चैप्टर की हमने 20 आयत तक पढ़ा था। नहीं, मेरे ख्याल में मैंने सारा ही कवर कर दिया था। आपने 20 तक पढ़ा था, लेकिन बाद में मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। हाँ, तो वो मैंने उसको बाद में साथ साथ मैंने खुद पढ़ा था इसको, मुझे याद था कि याद पढ़ता। चले आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 23। निकालेंगे कोई है हमारे साथ पढ़ने के लिए? पंजाबी च पढ़ेगा? पहले हाँ जी पंजाबी च थोड़ा जा पढ़ो फिर जी ब्रदर जी। कितनी वर्स पढ़नी है पहले? छोटा ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੋਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਉਚਾਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਠਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਚਿੰਬੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जी। चलें अब जरा उर्दू में भी थोड़ा सा पहली चंद आयतें पढ़ दें, जरा 5-6 आयतें पढ़ें। मैं पढ़ती हूँ।
इसके बहुत दिनों बाद जब खुदावंद ने बनी इस्राएल को उनके सब गिरदागिर्द के दुश्मनों से आराम दिया और यशुआ बुढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, तो यशुआ ने सब इस्राएलियों और उनके बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाकर उनसे कहा मैं बुढ़ा और उम्र रसीदा हूँ, और जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी सबब से इन सब कौमों के साथ किया वो सब तुम देख चुके हो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने आप तुम्हारे लिए जंग की। देखो हाँ मैंने कुर्रा डालकर बस मामू। अभी इतना काफी है। अच्छा जी, अब बात यह है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक यशवा जो है वो अब बूढ़ा और उम्र रसीदा हो गया है। यानी इसने मूसा के मरने के बाद यशवा ने एक लीडर का काम किया, लीडर का किरदार अदा किया। एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर बड़ी उसने जंगें लड़ी और सारी जंगें उसने जीती हैं। उसके वसीला से बड़े बड़े काम हुए इसराइल में। आपको पता है कि दरिया यर्दन पार करके वादे की ज़मीन में दाखिल हुआ अपनी कौम को लेकर। और फिर वो चाहे आई का इलाका हो, चाहे वो यरू की दीवार हो, चाहे वो यशवा के साथ एक खुदा का फरिश्ता बातचीत करता है। बड़े बड़े काम जो थे, बड़े बड़े मोजज़े जो वो यशवा के की लीडरशिप के दौरान हुए हैं। अब यशवा को ये पता चल रहा है कि उसके जाने का वक्त जो है वो नज़दीक आ गया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो खुदा के लोग हैं उनको पहले से पता चल जाता है कि उनके जाने का वक्त नज़दीक आ गया है। तो खुदा के लोगों को मौत जो है उनके लिए कोई जैसे वो बात कर रहा है उससे ये पता चल रहा है कि मौत जो है या उसको पता है कि उसके मरने का वक्त है, लेकिन उसके अंदर कोई डर या कोई खौफ या कोई ऐसी चीज़ इसकी बातों से हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसको अपने जाने का, इस दुनिया से रुखसत करने का उसको कोई डर या खौफ है। बल्कि वो क्या कर रहा है, वो उसने जो इसराइल के जो लीडर्स हैं, जो काजी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर हैं, उनको बुलाया है और उनको अब एक नसीहत कर रहा है। और उनको वो ये भी कह सकता था, देखो मैंने किसने बड़े बड़े तुम्हारे लिए काम किए, लेकिन वो क्या करता है कि वो उनकी तवज्जो जो है खुदा की तरफ, यहोवा परमेश्वर की तरफ उनकी तवज्जो दिलाता है और उनको कहता है कि देखो खुदा ने इतने इस मुश्किल में से तुम्हें निकाला और हमेशा तुम्हारे साथ किस तरह कैसे तुम्हारे साथ जुड़ा रहा, तो तुम मेरे जाने के बाद भी ये किस्म का एक, जैसे होता है ना किसी का फेयरवेल। आपको पता होगा कि जब कोई कंपनी या जब हम किसी फैक्ट्री में या कंपनी में किसी इदारे में काम करते हैं तो क्या होता है कि जब आखिरी दिन होता है तो वो हमारी फेयरवेल होती है। कुछ अदारों में वो क्या करते हैं कि पार्टी देते हैं और उसमें जो जो वर्कर होता है, जो जा रहा होता है या जो जिसकी रिटायरमेंट हो रही होती है, तो वो उसको बोलने का मौका दिया जाता है। वो बोलता है, आखिरी खुतबा उसको कह सकते हैं। तो ये एक किस्म का यशवा का आखिरी खुतबा कह सकते हैं आप, कि उसने जाने से पहले अपने लोगों के साथ आखिरी बातचीत की है। और मैं समझता हूँ बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं यशवा ने उनके सामने रखी हैं। और लिखता है कि इसके बहुत दिनों के बाद जब खुदा ने बनी इसराइल को उनके सब गिरदा गिर्द के दुश्मनों से आराम दिया और यशवा बूढ़ा और उम्र रसीदा हुआ। तो यशवा बूढ़ा भी हो गया, यानी वाह वड्डी उम्र का हो गया, यशवा बुढ़ा हो गया। तो यशवा ने सब इसराइलियों और उनके बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवा कर उनसे कहा कि मैं बूढ़ा और उम्र रसीदा हूँ। यहाँ लोग बूढ़ा होने से डरते हैं और बूढ़ा होने का जो एक कॉन्सेप्ट है उसी से डर लगता है कि बूढ़ा हो गया तो पता नहीं की हो जाएगा, ज़्यादा क्या होगा, मरना तो सबने है। तो एक मौत से जो डर है वो एक्चुअली हमें बहुत सारी मुश्किलात जो है ज़हनी, जिस्मानी और
स्पिरिचुअल जो हमारी रूहानी मुश्किलात में डाल देता है, जो मौत का डर जो है। जो मसीही लोग जो हैं उनको मौत का डर इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से दुनिया के लोग मौत से डरते हैं। तो यशुआ ने उनको वाज़े तौर पर कह दिया कि मेरे जाने का वक्त जो है अब आ गया है, मैं बूढ़ा और उम्र रसीदा हो गया हूँ। तो वो जाते हुए जाने से पहले, उसके बाद अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि यशुआ जो है 110 साल का होकर उसकी मौत हो गई थी और वो अपने अपने बाप दादा के साथ जा मिला। बाइबल में हमें बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं। याकूब ने मरने से पहले, जिसको इसराइल कहते हैं, उसने अपने 12 बेटों को बुलाया और उसने कहा कि आओ, जब मेरा जाने का वक्त नज़दीक आ गया है, मेरे नज़दीक आओ, मैं तुमको बताऊं कि तुम्हारे आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और खुदावंद की बातें उसने बड़े मोतबर तरीके से उनको, खुदा की बातें अपने बच्चों को, उनके लिए उसने बरकत चाही और उनको खुदा का कलाम उन तक पहुंचाया। इसी तरह हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं, इसहाक के बारे में हम देखते हैं कि इसहाक जब मरने वाला था, उसने भी इसी तरह की, मतलब लोगों को इवन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भाई मेरा जो वक्त है, जो मेरा देखो मेरा पकड़वाने वाला आता है। तो ज़रूर है कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाला किया जाए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने साथ उनको एक उम्मीद दी कि वो तीसरे दिन मृतों में से जी उठेगा। तो बात यह है कि लोग मौत के बारे में, अपने मरने के बारे में बात करते हुए भी डरते हैं कि मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी, ये एक क्रिश्चियन, जो मसीही जो जिंदगी का एक खासा मसीहियों का होना चाहिए कि वो अगर आपको पता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो आपको, आपके अंदर से मौत का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और खुदावंद वो, बल्कि आप एक रेस को या एक दौड़ को मुकम्मल करने के बाद आप अपनी अब्दियत में दाखिल होंगे। आप अपने अच्छे और परमानेंट घर है। ये दुनिया जो है ये हमारा देश नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है कि ये दुनिया हमारा देश नहीं है, बल्कि हम इस दुनिया में क्या हैं, परदेसी और मुसाफिर हैं। आप अगर लाहौर से कनाडा हैं तो रास्ते में आपको शायद दुबई में आपने कोई ऐसी फ़्लाइट ली है जो दुबई में रुकेगी, और दुबई से कुछ घंटों के आराम के बाद उसने कनाडा की तरफ सफ़र करना है। तो आपकी मंजिल जो है वो दुबई नहीं है, आपकी मंजिल क्या है, कनाडा है या अमेरिका है, जहाँ भी आपने जाना है। तो वो जो एक टेम्परेरी स्टे है जो दुबई में जो है, अगर लोग उसी में अपना दिल लगा लें तो उनको फिर दुबई को छोड़ते हुए सही मुकाम की तरफ जाना मुश्किल लगेगा। तो इसलिए इस दुनिया की आसाइशों में जितना ज़्यादा हम दिल लगाएंगे, उतना ही इसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मसीह यीशु ने कहा था कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। जहाँ पे हमारा माल होता है, जहाँ पे हमारी दौलत, हमारा धन, हमारा घर-बार, हमारी गाड़ियाँ, हमारे बैंक बैलेंस होता है, वहाँ पे हमारा दिल भी लग जाता है या लगा होता है। तो इसलिए लेकिन हमारा जो मसीहियों का, क्रिश्चियन जो है, उनका जो वो एटीट्यूड और उनका जो रवैया है, दुनिया के लोगों से क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। हमारा इस दुनिया के ये दुनिया जो है ये एक टेम्परेरी प्लेस है, वक्ती है, इसका ख़त्म होना ज़रूर है और जल्द है। या तो हमारा टाइम मुकम्मल हो जाएगा और हम खुदा के पास जाएंगे, या ये दुनिया ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोनों में से कोई एक काम ज़रूर होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, या हमारे हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में ही खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पे दोबारा वापस आ जाएं। तो इसलिए अपना माल और अपना असबाब इस दुनिया में, यानी कि मतलब इसका ये है कि हमारा दिल जो है वो इस दुनिया की आसाइशों में और इस दुनिया की ख्वाहिशों में इतना ना महव और वो बिजी हो जाए कि हम इसको छोड़ते हुए हमें मुश्किल लगे। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि वो जो अफसोस उन पर जो उन दिनों गर्भवती होंगी या उन दिनों हामला होगी, कि जो जब औरत हामला होती है तो क्या होता है, उसका दिल सब सोचे ख्यालात हर वक्त अपने बच्चे की तरफ लगे रहते हैं।
तो खुदा यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि उन दिनों ये हमारा दिल जो है वो दुनिया की आसाइशों में कहीं और इसकी ज़रूरतों में और इसकी ख्वाहिशों में हमारा दिल इतना महव हो जाए कि हम आसमानी चीज़ों की वो भूल जाएं। तो खुदा खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि बल्कि आसमानी चीज़ों की तलाश में रहो, आलम बाला की चीज़ों में की तलाश में रहो। तो हम देखते हैं कि बूढ़ा जो यशवा है वो उम्र रसीदा हो गया और उसने बुलाकर एक नसीहत की है, अपने लोगों को बुलाया और उनको कहा कि भाई मेरा जाने का वक्त नज़दीक है, इधर आओ, मैं तुम्हें खुदा की बातें और अपने दिल की बातें जो हैं, जो आखिरी खुतबा है जो है वो मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। तो उसने क्या किया है, उसने कहा कि जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे सबब से उन सब कौमों के साथ किया वो सब तुम देख चुके हो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने आप तुम्हारे लिए जंग की। तो कितने मसीही हैं जिन्होंने खुदा के हाथ को अपनी जिंदगियों में काम करते हुए देखा है। मेरा ईमान है कि सब ने देखा है, खुदा की मेहरबानियों को चखा है, उसका मज़ा चखा है। यानी कि देखें, जिसके पास मसीह है उसके पास गवाही है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही नहीं है, अगर आप ये नहीं ये नहीं कह सकते कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए बड़े-बड़े काम किए, तो इसका मतलब है कि कुछ आपका तल्लक जो है खुदा के साथ वो प्रॉपर नहीं है। तो जिसके पास बेटा है, यानी जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास गवाही है। तो इसलिए हम ये यहाँ यशवा भी उनको कह रहा है कि देखो, तुम सब और तुम देख चुके हो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने आप तुम्हारे लिए जंग की। कितने ऐसे मामलात होते हैं जब हम पीछे मुड़कर देखें तो आपको लगेगा कि ये तो काम ही नामुमकिन था, ये तो हो ही नहीं सकता था, जो मुझे पता भी नहीं चला और किस तरह मैं इसमें से निकल गई हूँ या निकल गया हूँ। तो क्या मतलब है कि उसके पीछे ज़रूर खुदा का हाथ था और खुदा ने आपको उस बड़ी मुश्किल में से, जो काम बज़ाहिर नामुमकिन थे, उनमें से आपको खुदा ने बार-बार निकाला। और यही जो है जो यशवा है जो है, वो उनको याद दिलाता है कि भी देखो, खुदा ने तुम्हारी जंगें खुद लड़ी हैं। उसने यशवा ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जंगें लड़ता रहा हूँ। याद रखें जो खुदा के लोग हैं, खुदा को हर बात में खुदा को जलाल देते हैं। तो यशवा ने, हालांकि वो ये कह सकता था, क्योंकि सारी जंगें उसकी लीडरशिप में लड़ी गईं, जीती गईं। सारी जंग जो थी, जो यशवा की लीडरशिप में, वो जब वो वादे की ज़मीन में आए हैं, तो कितनी कौमों को उन्होंने वो किया, उनसे जंग की और वो जीते। और वो सब का सब यशवा की लीडरशिप में हुआ। तो यशवा के पास एक पूरा अम, हर एक रीजन थी, या उसके पास एक सबूत के तौर पर था कि सारी जंगें उसके वसीला से जीती गईं या उसकी लीडरशिप में जीती गईं। लेकिन उसने सारा क्रेडिट खुद नहीं लिया, उसने अपनी वाह नहीं करवाई, उसने बल्कि उनकी तवज्जो खुदा की तरफ दिलवाई है। जब भी हम कोई बरकत मिलती है, आशीष मिलती है, खुदावंद हमारी मदद करता है, तो जो इंसान होते हुए हम क्या करते हैं, सारा क्रेडिट जो है खुद लेने की कोशिश करते हैं। ये इंसानी जिबिल्लत है कि वो अपनी वाह हो, हमारी जय जयकार हो, लोग हमारी तारीफें करें, लोग हमारी बल्ले बल्ले करें। लेकिन हम यशवा के कैरेक्टर से देखते हैं कि वो उसने सारी जंगें उसने क्या कहा, खुदा ने तुम्हारे लिए जीती हैं। तो खुदा, उसने सारा जलाल जो है खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद को देता है, कहता है क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारे लिए, खुदा ने आप तुम्हारे लिए जंग की। देखो, मैंने कुरा डालकर इन बाकी कौमों को तुम में तकसीम कर दिया किया कि वो उन सब कौमों समेत जिनको मैंने काट डाला, यरदन से लेकर मगरब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारे कबीलों की मेरास ठहरें। और खुदावन, फिर से देखें, खुदावन तुम्हारा खुदा ही उनको तुम्हारे सामने से निकालेगा और तुम्हारी नज़र से उनको दूर कर देगा, और तुम उनके
मुल्क पर कब काबज होगे, जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमसे कहा है। तो बार बार खुदावन तुम्हारे खुदा का जिक्र करता है कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम वादे की ज़मीन में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जब कब्जा करना है तो मतलब यह है कि हमारी जंग जो है अभी ख़त्म नहीं होती है। हमारी जंगें बल्कि और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की, क्योंकि तबलीस को, शैतान को, जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, जो सिर्फ नाम के मसीही हैं, उनके साथ उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो मतलब हर काम भी, दुनिया के गंदे काम भी करते हैं और साथ खुदा के साथ भी मतलब चर्च भी चले गए, मतलब वो चर्च के काम भी कर लिए और हालेलुया भी कर लिया, लेकिन अ, दुनिया को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोगों से शैतान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों के साथ है खुदा शैतान को, इब्लीस को, उन मसीहियों से है जो जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया से अलहदा किया है और जो खुदा उनके साथ सिद्ध के दिल से या सच्चे दिल से खुदा उनके साथ चलते हैं या चलना चाहते हैं। और खुदाउन फिर यीशु उनसे कहता है कि खुदाउन 5वीं आयत में अ, अ, और खुदाउन तुम्हारा खुदा ही उनको तुम्हारे सामने से निकालेगा और तुम्हारी नज़र से उनको दूर कर देगा और तुम उनके मुल्क पर काबज होगे, जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमसे कहा है। सो तुम खूब हिम्मत बांध कर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उसे दाएं या बाएं हाथ को ना मुड़ो और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनूज बाकी हैं ना जाओ और ना उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो और ना उनकी कसम खाओ और ना उनकी प्रस्तश करो और ना उनको सजदा करो। अब यशवा जो है, पहले तो उसने उनको बताया कि खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अब उनको नसीहत कर रहा है, नसीहत उनको ये दे रहा है कि तुम खुदा के कलाम से, उसकी शरीयत से ना दाएं मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना। कौन सबा है, सबा पढ़ोगे जरा, यशवा की किताब का पहला चैप्टर की 8वीं आयत में। उसकी 8वीं आयत, किताब उसकी 8वीं, 1 मिनट मामू, 23 बाब मामू या पहला बाब? पहला बाब। अच्छा 1 मिनट में निकाल लूं। उसकी 8, ये रही मामू मुझे। बल्कि 7वीं आयत में पढ़ो। अच्छा ठीक है। तू फक्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे न दाहिने हाथ मुड़ना और न बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। आमीन। शरीयत की ये किताब तेरे, हाँ, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। अच्छा, बस इतने काफी है। तो इधर यही बात जो इस किताब के शुरू में खुदा ने यशवा से कहा था कि तू इससे क्या करना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तो यही बातें यशवा अब जाते हुए अपनी कौम के लोगों को दोबारा से याद करवा रहा है। इधर हम क्या पढ़ते हैं, ये वो दोबारा उनसे कह रहा है कि कि 6वीं आयत में, सो तुम खूब हिम्मत बांध कर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उसे दाएं या बाएं हाथ को न मुड़ो। तो ये वही बात जो खुदा ने यशवा को शुरू में कही थी, जब पहले पहले चैप्टर को हमने पढ़ा था। तो तो क्या कहता है कि और सो तुम खूब हिम्मत बांध कर। अब खूब हिम्मत क्या इसको बोलते हैं, पंजाबी में क्या कहेंगे, दिलेरी। अंजना जरा पढ़ना पंजाबी में 23वां चैप्टर 6वीं आयत च पढ़ना। 23 चैप्टर नहीं ये पढ़ रहे हैं। हाँ जी, 6वीं आयत। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕੋ। हाँ,
बहुत तगड़े हो जाओ, यानी कि हिम्मत हिम्मत दिलेर हो जाओ, ਦਲੇਰ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। है ना, ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ मुश्किल ਵੱਡੀ हो गई, बल्कि असी कमज़ोर। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी क्या है? हिम्मत कम है। ये कितने पढ़ांगे हुण मैनू? ये अमाल दी सॉरी एक मिनट, अमसाल दी किताब, ज़बूरा तो बाद दी किताब है, जरा कढ़ो अंजना। ਚੈਪਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ? किसी को याद है? अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी क्या है? कुव्वत कम है। चौबी का 24वां चैप्टर और 10वीं आयत पढ़े थे ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਘੱਟ ਹੈ। हाँ, तेरा वाल काट है। तो उर्दू में इस तरह लिखा हुआ है कि अगर अगर विपता के दिन, यानी कि अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए या दिल छड़ जाए या हिम्मत छड़ जावे तो तेरी कुवत घट है। ये नहीं कि खुदावन का फजल घट हो गया, ये नहीं कि परमेश्वर की दया साढ़े ते घट हो गई, बल्कि साड़ी अपनी साढ़े अपने च ही कमजोरी है। तो वो पौलू जशुआ नू इस गल का बड़ा अच्छी तरह पता है कि वह कहता है कि तुसी हिम्मत बननी है, तुसी दलेर होना है, तुसी सो तुम खूब हिम्मत बांध लो, यानी कि तुसी तगड़े हो जाओ, जोर फड़ लो, तकड़े हो जाओ। तो बहुत सारे मसीही जिहड़े ने उन्हां कोल सब कुछ होने के बावजूद देखो कि सानू की चाहिए? परमेश्वर का वचन साढ़े हथ च है, सानू परमेश्वर ने आवाज़ दिती है। सानू ते दुनियावी हथियारां दी भी लोड़ कोई नहीं, ना तलवार चाहिदी है। दुनिया दे जेड़े नेता ते देवी देवता वो जंगां करदे या मतलब बहुत मुख्तलिफ तरीक़े नाल अपने आप नू तकड़ा साबित करने की कोशिश करते। पर साडे लई की असीं ते अपनी हर जंग जिहड़ी है अपने गोडियां ते, यानी कि प्रार्थना करके परमेश्वर दे चरनां च आके की कर सकने, असीं हर जंग जित सकने। ते सानू साडे अंदर जो डर पैदा हो जाता है तो असीं साडा ईमान जिहड़ा पिता परमेश्वर ते नहीं रहिंदा, असीं डोल जाने। ते यशुआ नू ये पता सी कि जिहड़ा हिम्मत जवाब दे जाती इन्हां दी है। तो उन्हें कहा कि सो तुम खूब हिम्मत बांध कर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उससे दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ो, और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनूज बाकी हैं ना जाओ और उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो और ना उनकी कसम खाओ, यानी कि ना तो उन्होंने देवताओं का जिक्र करो, ना उनकी कसम खाओ, ना उनकी प्रस्तश करो, ना उनको सजदा करो। ते असी जिन्ना दुनियादार लोगों नाल खलत मलत या मिल के रवांगे उन्ना ही असी खुदा तो दूर होंदे जावांगे। सानू अलहदा किया गया, जिस तरह स्पिरिचुअल या जेड़े जिस्मानी जेड़े शरीरिक इसराइली ने उन्होंने उदों खुदा ने दूसरिया कौमों तो अलहदा किया सी और अलहदा रहणगे वो। तो इस तरह जेड़े असी स्पिरिचुअल इसराइल हैं, रूहानी तौर पर इसराइली हैं, सानू भी खुदा ने अलहदा किया। गिनती की किताब का किते बलाम नबी का जिक्र जिथे जिक्र है ना, वो पढ़ो जरा। गिनती की किताब कढ़ियो कोई, बलाम का जिक्र किसी ने पढ़ लभ जाए तो मैनू जरा 22 23 3 ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆ। हाँ हाँ ठीक तो हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बलाम ते बल्क बात, हाँ थैंक यू। नहीं
हाँ 22वां चैप्टर जी 22वां चैप्टर है ना। वर्स ਤੇ ਇਥੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਮ ਅकेली ही बसी रहेगी, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਰਸ ਚ, ਇੱਕ ਉਮਤ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲੀ हाँ पढ़ो आगे पढ़ो। ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਮ ਕੋਲ ਪਥੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੱਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਮਤ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦੇਵੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤ ਬਲਵੰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇ 23ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 23 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਚੈਪਟਰ 23 ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ ਪੜਿਓ। ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਆਮੀਨ। हाँ ये बाइबल च लिखा, उर्दू च लिखा कि ये कौम अकेली ही बसी रहेगी। तो खुदा ने अपने लोगों ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੀਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਜ਼ਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇਸਰਾਏਲੀ। ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੈਵੰਦਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਵਿੰਦਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਚੋਂ
ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਵੰਦਕਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਦਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਦਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਦਾਬ ਲਾਉਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ 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 ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਹਿਲਾਏ ਗਏ ਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਬਰੂਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗ ਲੜਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि तुम दुनिया के नहीं, अगर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे जो फॉलोअर हैं या मेरे शागिर्द जो हैं वो क्या करते, जंग करते। तो साड़ी जिहड़ी जंग है वो यीशु की बादशाही इस दुनिया की नहीं। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਹੀ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਡੈ ਪਏ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਇਤਕਾਫ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੂਫਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਕੱਲੀ ਹੀ ਵਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, खलत मलत ना किया, क्योंकि खुदा ने बड़ी बड़ी और जोर आवर कौमों को तुम्हारे सामने से दफा किया, बल्कि तुम्हारा ये हाल रहा कि आज तक कोई आदमी तुम्हारे सामने ठहर ना सका। तुम्हारा एक एक मर्द एक एक हजार को रगेदेगा, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए लड़ता है, जैसा उसने तुमसे कहा। तुम्हारा एक एक मर्द एक एक हजार को रगेदेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕੁ ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 80 ਜਾਂ 90 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਸ਼ੂਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ,
और ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਕੀਅਤ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹਮਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਮਬੂਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੀਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਬਚ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਵਨੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, क्या कौन सी वर्स पढ़नी है? वो पढ़ो, कहाँ लिखा है जहाँ पे कि खुदा जो है इनको वापस लेकर आएगा, और वो वहाँ पे मेरा ख्याल है वो वहाँ पे विनयार्ड लगाएंगे। आई थिंक हिजकियल हाँ, एमोस की किताब 9वां चैप्टर, उसकी 14 आयत, कोई भी पढ़ दे जिसको मिल जाए। आमोस की किताब 9वां चैप्टर, उसकी 14 आयत। और मैं बनी इसराइल अपने लोगों को सीरीज से वापस लाऊंगा। वो उजड़े शहरों को तामीर करके उनमें बूदोबाश करेंगे और ताकिस्तान लगाकर उनकी मैं पिएंगे। वो बाग लगाएंगे। आमीन। हाँ, तो ये खुदा ने इनको ये वापस लाने का वादा किया था, और ये 1948 में 14 मई 1948 को ये रियासत के तौर पर दोबारा दुनिया के नक्शे पर उभरे थे, एज ए रियासत और एक स्टेट के तौर पर। यर्मिया की किताब, उसका 32वां चैप्टर 15 आयत पढ़े। पढ़ोगे जरा, कोई है पढ़ने वाला? यर्मिया 32 चैप्टर 15 आयत। जी यर्मिया 32 चैप्टर 15 आयत। जी जी। क्योंकि रब्बुल अफ़ाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि इस मुल्क में फिर घरों और खेतों और ताकिस्तानों की खरीदो फरोख्त होगी। अच्छा, ये पढ़ें, और uprooted, they will never be uprooted again। ठीक है, इनको दोबारा
आमोस की किताब 9वां चैप्टर और उसकी 15 आयत। क्योंकि मैं उनको उनके मुल्क में कायम करूंगा और वो फिर कभी अपने वतन से जो मैंने उनको बख्शा है निकाले ना जाएंगे। खुदावन तेरा खुदा फरमाता है। आमीन। आमीन आमीन। तो ये दिस इज देयर परमानेंट, क्या उसको बोलते हैं, दे विल नेवर बी अपरूटेड अगेन। इसका मतलब ये है कि खुदा उनको वापस लेकर आएगा। देखिए, अगर आप ये हिस्ट्री किस दिन अगर आप कहें तो हम आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। ये ज़मीन जो है, ज़मीन का हिस्सा जो है, ये यशवा की लीडरशिप में ये खुदा ने इनको दिया था। और ये कभी, और ये इन्होंने जब भी गलती की है खुदा ने इनको पनिशमेंट दिया है। आपको पता है कि नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर में जो सुलेमान बादशाह ने हैकल तामीर की थी वो तबाह कर दी गई, और उसके बाद ये दुनिया में तितर बितर हो गए। फिर ये अजरा के दौर में वापस आए, नहमिया ने दीवार बनाई, और फिर हम देखते हैं कि जो अजरा के दौर में फिर जो हैकल की दोबारा तामीर शुरू हुई। और फिर जो ज़ुरबाबल जो था उसने दूसरी हैकल में बनाने में हिस्सा लिया। और फिर यस्सु के दौर, मसीह खुदावन के वक्त में फिर खुदावन यस्सु मसीह ने कहा था कि जब इन्होंने मसीह को रिजेक्ट किया, मसीह यस्सु को इन्होंने रद्द किया, तो खुदा की जजमेंट इन पर फिर आई। फिर उन्होंने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। लेकिन खुदा की बरजिद, ये याद रखें कि खुदा के जो वादे हैं वो अपने, जो इस उन्होंने खुदा ने इनके साथ एक कॉवेनेंट या एक वादा या एक अहद किया है, जो न्यों किया है, वो खुदा उसको बदल नहीं सकता। इसलिए खुदा इनको पनिशमेंट करता है और फिर वापस इनको, जब भी इनको एहसास होता है तो खुदा वापस अपने वादे के मुताबिक इनकी ज़मीन पर लेकर आता है। और जब मसीह यस्सु को इन्होंने रद्द किया, और फिर उन्होंने रद्द करने का भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब इन्होंने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर, तो ये जो खून उन्होंने यस्सु की जो स्लीब पर चढ़ाए जाने का पूरा प्रोसेस था, इसको उन्होंने अपने ऊपर, अपनी औलाद के ऊपर लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जजमेंट, खुदा उनका कहर मसीह यस्सु के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद दोबारा ये दुनिया में तितर बितर हो गए। और फिर 1800 साल तक ये दुनिया से के नक्शे से गायब रहा। कहीं इसराइल का नाम दोबारा हमें नहीं मिलता। लेकिन 1800 साल बाद 1948 में 1948 में ये दोबारा इस दुनिया पर वापस इस नक्शे के ऊपर जाहिर हुए, और एक स्टेट के तौर पर। लेकिन उसका हमने आज कलाम में पढ़ा कि खुदा ने कहा था कि मैं दोबारा इनको इनकी ज़मीन पर वापस लेकर आऊँगा, और ये दोबारा कभी निकाले ना जाएंगे। और जब तक खुदा यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में नहीं आ जाता, इसराइल की सलामती हो, और इसराइल को कोई उनकी ज़मीन से नहीं निकाल सकता। ये अगर निकालना होता, अगर निकाल सकते होते, तो 1 घंटा भी ये स्टेट जो है, ये रियासत कायम नहीं रह सकती जब तक खुदा का हाथ इनके ऊपर ना हो। आप कभी नक्शे के ऊपर देखें, आपको लगेगा कि ये यहाँ पे बसे कैसे हुए हैं, इनका यहाँ रहना नामुमकिन है। जिस तरह गैर कौमें इनके हर तरफ हर वक्त हजारों सा मील दूर तक इनकी घात में लगे हुए हैं, और कोई मुल्क इनके साथ नहीं है। लेकिन इनका इस दुनिया में, इस ज़मीन पर एक रियासत के तौर पर कायम रहना, ये खुदा की कुदरत और उसके कमाल का ही अमल और नतीजा है। इंसानी तौर पर देखा जाए तो ये नामुमकिन है। तो लेकिन लोगों ने बहुत सारी गलत मलत तालीमें और इस तरह की घड़ ली हैं, जबकि हमें खुदावंद के कलाम को अगर हम समझें तो हमें पता चलेगा कि दे विल नेवर बी अपरूटेड। और खुदावंद ने आखिरी दिनों में क्या लिखा है कि मैं यरूशलेम को लड़खड़ाहट का प्याला बना दूंगा। तो जब तक खुदावंद और जो इसको हाथ लगाएगा वो क्या होगा, जख्मी होगा। तो मसीह यस्सु के आने तक जो है इनको इस, क्योंकि मसीह यस्सु का आना तो तब ही होगा ना जब यरूशलेम इस दुनिया में है। अगर यरूशलेम नहीं है तो इस दुनिया में
मसीह यीशु का आना कैसे होगा। ठीक, तो यरूशलेम का इस दुनिया में और इसराइल का एज ए स्टेट इस दुनिया में वापस दुनिया के नक्शे का पर वापस आने का मतलब ये है कि यीशु का वापस आना नजदीक है। तो ये बहुत सारी मसीह की जो पेशन गोइयां हैं वो मसीह के आने की, वो यरूशलेम या इसराइल की रियासत के साथ अटैच है। वो इसको बोलते हैं टाइम क्लॉक। ये एक, आप वक्त है ना, वक्त देखने के लिए घड़ी की तरफ देखते हैं, इसी तरह आपको समय के बारे में, दुनिया में क्या होने वाला है इसके बारे में जानने के लिए आपको इसराइल की तरफ देखना पड़ेगा। इसराइल जो है वो खुदा का टाइम क्लॉक है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, तब हम इसको ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और तुम्हारा एक एक मर्द हजार हजार तुम्हारा और तुम्हारा एक एक मर्द एक एक हजार को रगेदेगा। यही आज हम देख रहे हैं कि इनका एक मरता है तो दुश्मन के हजारों मरते हैं, एक के बदले हजार लोग मारते हैं। ये याद रखें, इसराइल का ये असूल है और उनका वतीरा है। उनका कोई एक बंदा मारते हैं तो वो हजार को लताड़ देते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। और जितनी भी जंगें लड़ी हैं, पहले 3 जंगें ऐसी हुई हैं जिनमें सारे अरबी मुल्कों ने मिलकर इन पर हमला किया था और हर जंग हारे हैं वो। तो हम देखते हैं कि इनका उनका इसराइल का कोई एक बंदा मरता है तो उनके दुश्मन के हजारों बंदे मरते हैं उसके इवज, जो कि आज के कलाम में हमें ये ज़ाहरन क्या लिखा है, तुम्हारा एक मर्द एक एक हजार को रगेदेगा, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए लड़ता है, जैसा उसने तुमसे कहा। बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर उन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शीरो शक्कर हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिले, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलू के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगे, यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। तो खुदावंद ने और उनको नाबूद किया भी है। जब भी इन्होंने गलती की है खुदा ने इनको सजा दी है। लेकिन ये जो रीगैदरिंग है, जिसको दोबारा जब इस दुनिया में इसराइल के नक्शे का वापस आना जो है, ये नबूवत का पूरा होना है, जो आगे जाकर आज हमने आमोस की किताब में पढ़ा है कि वो दोबारा 9वें चैप्टर की 15वीं आयत में क्या लिखा है कि मैं उनको दोबारा इकट्ठा करूंगा और दे विल नेवर बी अपरूटेड, वो दोबारा कभी परागंदा नहीं होंगे। लेकिन अगर वो गलती करेंगे तो उनको उसकी सजा खुदा साथ साथ देता रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने उनसे कहा कि तुम इनके साथ शीरो शक्कर, यानी उनके साथ गैर कौमों के साथ जुड़ना जाना। जैसे हमारे ये बहुत सारे, मैं तो हैरान होता हूँ, ये पाकिस्तान में क्या ये ड्रामेबाजी जो करते हैं पाकिस्तानी पादरी साहबान, वो जी क्रिसमस का केक काटने के लिए गैर कौमों को, मुसलमानों को जाके चर्चिज में बुलवा के उनसे केक कटवा रहे हैं और उनको हार पहना रहे हैं। पता नहीं क्या इनको खुशनुदी, दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने मसीह की तालीम को बिल्कुल रद्द कर दिया। इसीलिए हमारी कौम में जो बरकत और जो गैरत है वो बिल्कुल जैसे मतलब जो मसीह पर ईमान और जो मुसीबतों का एक ढेर है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हम मसीह की तरफ देखने की बजाय इन लोगों की तरफ देखते रहते हैं। तो बल्कि हमारे जो जो रिलीजियस लीडर हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने इस जी केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, ये मतलब फलाने वजीर को बुला लिया, फलाने, और आपने खुदा के घर को क्या तमाशा बना के रख दिया। ये मतलब अब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी होता है कि ये इन्होंने क्यों मतलब एक खुदा का घर जो है, तो खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर जो है क्या था जहाँ पे उसने कोड़ा लेकर इबादत का घर होगा, खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था, और तुमने डाकुओं की खो बना दिया है।
यानी कि एक तजारत का एक कि हमें फंड मिलेंगे, हमें लोग चंदा देंगे, पैसा देंगे, और गैर कौमों को खुश करने के लिए केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। मतलब क्या क्या अजीब अजीब तमाशे शुरू किए हुए इन्होंने चर्चेज में। और खुदा का घर जो है वो इबादत का घर होना चाहिए, और वहाँ पे खुदा की इबादत होनी चाहिए, खुदा की रेवरेंस होनी चाहिए, खुदा का डर और खौफ होना चाहिए। तो वो हमारा सारा ख़त्म हो गया। खुदा ने कहा था कि इनके साथ खलत मलत ना होना। हम मुसलमानों को और गैर कौमों को अपने घरों में घुसा लेते हैं। जवान लड़कियां हैं, उन वो मतलब हिच हिच कर रहे हैं, लड़कियां लड़के हैं। खुदा ने तो इनसे अलहदा रहने के लिए कहा हमें। हमने इनके साथ भी रहना है, लेकिन इनसे अलहदा भी रहना है। आप कभी शिरो शिक्कर नहीं हो सकते इन गैर कौमों के साथ। एक खास एक जो होता है ना प्रोफेशनलिज्म जो होती है, या अगर आपके कुलीग हैं या आपके, ठीक है, कई कहते हैं जी नहीं नहीं हमने इनको मोहब्बत दिखानी है तो मोहब्बत दिखाने के और बहुत सारे तरीके हैं अपने गैर कौमों के साथ। खुदा ने हमें इनसे लादा रहने के लिए कहा है। और इसी तरह छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो क्या है मतलब ओ जी फलाने नाल नस गई, फलाने ने ऐसा कर दिया। आप उनको अपने घरों में घुसाते हैं, और वो गैर कौमें कभी भी आपके वो सके नहीं है। दे हैव देयर ओन एजेंडा। आपके जो उनकी वैल्यूज फर्क है, उनकी जो जो होती है ना वैल्यूज कहते हैं अखलाकी अकदार, या जिस तरह उनका अखलाक उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। जो हमारे लिए गुनाह है वो उनके लिए गुनाह नहीं है। छोटी बच्चियों के साथ और इस तरह मतलब जिस घर में घुसे उसी की बच्ची को लेके गुम हो गए। तो ये सारी चीजें हमें खुदा से दूर कर देती हैं। चले मैं अभी बंद करता हूँ। तो अगर आप मेरा ख्याल है कि वो मुझे अब यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। तो अगर इजाज़त हो तो थोड़ा आगे पढ़ दूँ, लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो गया। तो ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट इसी से शुरू कर लेंगे। नहीं तो वैसे ये किताब जल्दी ख़त्म होने वाली है। अगला चैप्टर जो है इसका लास्ट चैप्टर है। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो नहीं, मतलब बस एक मैं जब आप कर रहे थे रूहानी इसराइल और मतलब जिस्मानी इसराइल की बात कर रहे थे, तो बस मेरे वो ज़हन में आ रहा था कि पहले दौर में पुराने अहदनामे में मतलब जब उन्हें तो खुदावंद खुद उनके साथ होते थे, उनके पास पाक रूह नहीं थे, ठीक है? लेकिन अब जब मसीह आए तो फिर जब मसीह ऊपर आसमान पे गए तो उन्होंने वादा किया कि मैं पाक रूह भेजूँगा। तो मेरा अपना ज़हन में ख़्याल आ रहा था कि शायद हम इस वज़ह से भी रूहानी इसराइल हैं क्योंकि खुदावंद का पाक रूह मतलब खुदावंद ने हमें दिया है। ये बस मैं पूछ रही थी ये कि इस वज़ह से भी सवाल पता नहीं मैं समझा सकी हूँ कि नहीं? देखिए हम लोग बाइबल में इस तरह हमें जिक्र मिलता है कि हम ग्राफ्ट किए गए हैं। हम पैबंदकारी की गई है हमारी। हम लेट मी रीड इट फॉर यू। आप इसका हमें जिक्र मिलता है यूहन्ना की इंजील 15वां चैप्टर में। उसकी पहली से 6वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि हम ग्राफ्टेड हैं। हम
हम वाइल्ड ब्रांचेस हैं, यानी कि हम जंगली दरख्त थे जिनको खुदा ने अपने गला खाना में शामिल किया मसीह यस्सु के वसीला से। मसीह यस्सु कौन था? वो यहूदियों के कबीले थे से था। यस्सु मसीह की पैदाइश यहूदियों में हुई। ही वाज सन ऑफ यू नो डेविड के, दाऊद के कबीला में से था। तो दाऊद के कबीला में क्या का मतलब यह है कि यहूदा के कबीला में, यहूदियों में से, इसराइल में से था, ना कि कतूरा के बेटों में से था और ना ही इस्माइल के बेटों में से था। मसीह यीशु कहाँ से था? यहूदा के कबीला में से। जो यहूदा कौन है? इसराइल का बेटा है, इसराइल के कबीले में से था। और जो जो कुछ हमारे पास इस वक्त है ये सब यहूदियों की दी हुई है। ये पूरी बाइबल किसने लिखी है? किसी को पता? बाइबल की 66 किताबें यहूदियों की दी हुई हैं। मसीह यीशु यहूदी था। मसीह यीशु के 12 शागिर्द यहूदी थे, इसराइली थे। तो हम जो अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो दुनिया की हर इजाद, कोई आप बड़ी इजाद देख लें दुनिया में इस वक्त आपके पास, उसमें आपको यहूदियों का अमल दखल मिलेगा, उनकी क्रिएशन मिलेगी। तो हम रूहानी तौर पर यहूदी इसलिए हैं कि हमारे अंदर यहूदियत का जिस्मानी तौर पर खून नहीं है। हम उस कबीला से नहीं है, लेकिन हम यीशु की वजह से उस शरीयत का और उस दरख्त का हिस्सा बने हैं। हम तो वाइल्ड ब्रांचेस, या हम जो थे जंगली दरख्त थे जिनको शामिल किया गया है। नहीं समझ आई? हाँ जी, आगे। ये रोमियो के खात में भी लिखा है कि 11 में, उसका 17 में, वी वर वाइल्ड ब्रांचेस। हम मसीह यस्सु पर ईमान लाने से, मसीह यस्सु पर यानी कि एक यहूदी पर ईमान लाने से हम क्या हैं? हम रास्तबाज ठहरे हैं। और मसीह यस्सु ने क्या कहा था कि निजात कहाँ से है? पढ़े जरा क्या लिखा है। मसीह यस्सु ने फरमाया साल्वेशन इज ऑफ द ज्यूज। यूहन्ना की इंजील 4 चैप्टर में उसका 22वीं आयत में लिखा है। वफा आप है इधर? तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। आमीन। हाँ, Praise प्रेज गॉड। तो निजात कहाँ से है वफा? तो यहूदियों निजात में जो से। है, हमारे तक जो निजात पहुंची है वो यहूदियों की तरफ से है, में से है, यहूदियों की तरफ से है, दी हुई है। और बाइबल की 66 किताबें यहूदियों की लिखी हुई हैं। यीशु के, अगर आज हम यीशु की तालीमात हमारे पास हैं तो वो यहूदियों की वजह से हैं। और दुनिया जो है इनका नहीं दे सकती। खुदा ने इनको बरकत देने का वादा किया है, और ये वो अपने वादों से, और अगर वो अपना कवनेंट जो है वो भूल नहीं सकता जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया। तो इसलिए खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत है। आई डोंट नो वफा मैंने अगर इस बात का जवाब दिया कि नहीं, लेकिन चले इसको आज की बाइबल स्टडी को कंप्लीट करते, उसके बाद अगर आपने ठहरना होगा तो हम सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी प्रेयर करता हूँ, तो खुदावंद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। खुदा उन कौमों के खुदा, उम्मतों के रब ओ खुदा, इसराइल के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। इसराइल के यहोवा खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा। थैंक यू फादर। खुदा हम तेरा शुक्र हो तेरी कौम, तेरी बनी इसराइल के लिए खुदा, जिनको तूने बरकत देने का वादा किया है बाप आसमानी, अपने तेरी कौम बनी इसराइल के लिए तेरी बरकत
और सलामती की दुआ करते हैं। खुदा अपने लोगों को बरकत दे। खुदा यीशु की पहचान तक उनको लेकर आ। खुदा बाप, थैंक यू फादर। खुदा सल्वेशन इज फ्रॉम द ज्यूज, निजात यहूदियों में से है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। इस कलाम पर तेरी मोहर हो यीशु के आने तक। खुदा हमें अपने में और मजबूत कर और हमारी मदद और सहायता करते रहे। खुदा हमारी सारी खताओं गलतियों को माफ कर। इस ग्रुप के लिए ऐ पाप हम तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। थैंक यू फादर, ब्लेस ईच वन ऑफ अस। खुदा हमारे हमें से एक एक को बरकत दे, यीशु के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहे। थैंक यू फादर, ब्लेस यू एंड वी ऑनर यू लॉर्ड। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन, हालेलुया।